Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to discuss about the DNA replications. This topic included in the chapter Molecular Basis of Inheritance of class 12th biology. So now I am going to discuss about the DNA replication. First of all, what is DNA replication? What is the definition of DNA replication? On the behalf of discussion of DNA replication, I am going to discuss about the central dogma. What central dogma tells? Central dogma tells that the conversion of DNA to RNA and RNA to protein, and the process is known as DNA to RNA formation is known as transcriptions, and RNA to protein formation is known as translation, and from DNA to DNA formation is known as replication. So that's in that part we are going to discuss about the formation of DNA from the DNA chain, DNA polypeptide chain. So, and also if the RNA from RNA DNA is formed in some viruses is known as, this process is known as reverse transcription. तो ये सिर्फ वायरस में होता है और रेप्लिकेशन अभी इसमें पढ़ेंगे, और कुछ वीडियो और आएंगे जो ट्रांसलेशन को भी, और जिसका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छे वीडियो आने वाले। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अभी आज का वीडियो। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज a hereditary material in most living organism, as you know. So DNA replication is a biological process which produce two identical copies of DNA from one original DNA. This is one DNA, and from this DNA two original copies is formed. So this is the definition of DNA replication. It occurs in both prokaryotes and eukaryotes in a similar step, where unbinding is done with the help of the enzyme helicase and manufacturing of the DNA strand is. This line you will understand after the DNA formation steps. Third is after the third step you will understand better. And also DNA replication is a semi-conservative method, means parental strands serve as the template for synthesis of new complementary daughter strands. Like that, if one DNA is, this is one DNA, and from this DNA two DNA is formed, means this DNA and this, from this DNA one DNA goes to the one other side and one goes to the other side, means like that. If we make with two different color, then it looks like that. Suppose this is the DNA of one strand, one is, and this is the other strands, ठीक है। तो जब ये रेप्लिकेशन में भाग लेगा तो एक डीएनए बाहर आ जाएगा और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड अलग आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, अब डीएनए पॉलीमरेज इस पे एक्ट करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और इस पे रेप्लिकेशन होगा दोनों पे। आई बात समझ में, ठीक है। देन आफ्टर रेप्लिकेशन वन न्यू डीएनए इज फॉर्म्ड, then this type of replication is known as semi conservative method of DNA replication, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा है सारा कुछ। नाउ अब मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे इसको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ कि लोकेशंस कहाँ, मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन होते कहाँ हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें होता है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम किसमें, प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में। तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दैट, ओके।
and in phase of the cell cycle. And which phase of the cell cycle DNA replication occur in eukaryotes? इसमें phase of cell cycle is क्या है? phase of cell cycle S phase, as you know. Okay, but in eukaryotes, sorry, in phase of cell cycle like prior to fusion, means जब मन करेगा तब डिवाइड करेगा, prior to fusion. Okay, and in eukaryotes phase of the cell cycle is S phase, as you know, as you already read this part in the cell cycle and division. Okay, so this is the basic. And all DNA do not replicate at once. Euchromatic replicate before heterochromatic, means euchromatin replication occurs more fastly, more easily, and before the heterochromatin. And ओराइसाइट मीन्स ओराइसाइट क्या होता है? ओराइसाइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वन पॉइंट इज मोर दैट इट इज एडेनिन और थाइमिन रिच. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट if examiner may go out beyond of the syllabus, then this question may ask that AT reach is orisite is AT reach. Okay, in orisite it is distinguished into two parts. First of all is in prokaryotes, okay, and in eukaryotes. तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में सिर्फ वन ओराइसाइट होता है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल ओराइसाइट होता है, ठीक है। ये सब शॉर्ट नोट्स है, अगर मन पड़े तो लिख लेना, ठीक है। चलो देखो, पहले बताओ प्रोकैरियोट्स में कौन सा टाइप का डीएनए होता है? प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का डीएनए होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ओके, ये बात बेसिक्स। अब बताओ इसमें ओराइसाइट क्या होगा? बस एक ओराइसाइट होगा जहां से रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये एक ओराइसाइट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और बताओ ये बहुत सारा पॉइंट होता है, ये यहाँ पे इसका ओराइसाइट यहाँ हो सकता है, इसका ओराइसाइट यहाँ हो सकता है, इसका ओराइसाइट यहाँ, तो यहाँ पे मल्टीपल ओराइसाइट पाए जाते हैं ताकि ये इधर भी ऊपर भी रेप्लिकेट कर सके, नीचे भी और ऊपर भी और फिर नीचे भी। ये बनाते हैं क्या? फॉर्क फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्क फॉर्मेशन। ओके, तो इस तरह से फॉर्क फॉर्मेशन इसमें बनता है। इसको डिटेल में फॉर्क फॉर्मेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, लोकेशन हो गया। स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? अनवाइंडिंग या अनजिपिंग, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, यार थोड़ा राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, क्योंकि जल्दी इसमें कॉन्सेप्ट समझाना है तुम्हें। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप पे। पहला स्टेप है इनिशिएशन। इसमें क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है इसमें? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स देखो, पॉलीमराइजेशन के समय न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो तरह के फंक्शंस होते हैं।
क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होना होता है, ओराई साइट पे, ठीक है। तो ओराई साइट पे स्टार्ट होना होता है, मीन्स इससे हाई सबस्ट्रेट को लो सबस्ट्रेट में चेंज होना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चेंज होता है मोनोफॉस्फेट में। उससे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है डीएएमपी जो होता है, या डीसीएमपी या डीजीएमपी एंड डीएमपी। इससे एक एटीपी जुड़ता है, हाई एनर्जी एटीपी, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डीएएमपी डीएटीपी में चेंज हो जाता है, ठीक है। डीएएमपी का मतलब क्या हुआ और डीएटीपी का मतलब मैं पता होगा, डीसीटीपी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटोसिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट यहाँ नहीं होता, याद है ना, यूरासिल आरएनए में होता है। लेकिन डीएनए डीऑक्सीराइबोज थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से डीऑक्सीराइबेज थाइमीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबिल ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, एक एटीपी जुड़ता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, ठीक है, एटीपी के प्रेजेंस में। फॉस्फोराइलेज होता है एनर्जी। पॉलीमराइजेशन के समय न्यूक्लियोसाइड जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, ये सब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये डुअल फंक्शन करते हैं। या तो पहला तो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है, सबस्ट्रेट सोर्स। क्या है, सबस्ट्रेट सोर्स, एज अ सबस्ट्रेट यूज होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इसको करता है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का फॉस्फोरेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में मोनोफॉस्फेट में चेंज होता है, ठीक है। चलो, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब डीएनए रेप्लिकेशन अब स्टार्ट हो चुका है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ओराई साइट में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप होगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, या जिसको बोलते हैं अनजिपिंग। मीन्स डीएनए जो होता है उसको खोलते हैं, मीन्स सेपरेशन ऑफ टू चेन्स ऑफ द डीएनए इज नोन एज अनजिपिंग। मतलब दो चेन्स ऑफ द डीएनए उसको सेपरेट करना, अनजिपिंग। एंड इट टेक प्लेस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड। तो इसमें क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड। ये डीएनए होता है, ठीक है, इसके बीच में एच बॉन्ड होता है, तो इस एच बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एंजाइम आता है, कौन सा, ओराई साइड पे जाते हैं, ओराई साइड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और हेलिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो अनजिपिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ओनली वन जो बताया, और यूकैरियोट्स में मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, जैसे कि अनजिपिंग स्टार्ट्स एट द मेनी पॉइंट साइमल्टेनियसली। तो यूकैरियोट्स में अनजिपिंग जो है अलग अलग साइड पे स्टार्ट होता है, लेकिन मैं प्रोसेस में एक ही साइड पे बताऊँगा, क्योंकि अलग अलग में बताऊँगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। At the place of origin of enzyme responsible for unzipping breaking of hydrogen bond is helicase, जिसको स्यूविलेज भी बोलते हैं, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोजन ऑफ एच बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एनबॉन्डिंग एट प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग रिक्वायर्स मैग्नीशियम प्लस 2 फैक्टर एज अ को फैक्टर, ठीक है। तो को फैक्टर मैग्नीशियम प्लस 2 यूज होता है। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा, ठीक है, वेट करना। एसएसबी एक प्रोटीन होता है जो प्रिवेंट करता है रीफॉर्मेशन ऑफ, अब भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बन रहा था, टूट रहा था, ठीक है, इधर भी और इधर भी टूट रहा था, दोनों तरफ टूट रहा था। बट अभी ऐसा भी तो हो सकता है ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर ले, इसीलिए एसएसबी प्रोटीन जो होता है ये यहाँ एसएसबी प्रोटीन जाके जुड़ता है, ताकि ये इसको इधर खींच के रखे और इधर खींच के रखे, ठीक है। ट्रोपोआइसोमेरेज, ट्रोपोआइसोमेरेज क्या करता है, ठीक है। Tropoisomerase in prokaryotes also called DNA gyrase release the tension arise during the supercoiling। अब यहाँ पे देखो, कोई भी रस्सी को तुम, ये रस्सी होता है, ठीक है, इससे बांधते हैं हम लोग। तो अगर रस्सी के बीच से तुम अगर खोलते हो तो यहाँ पे क्वाइलिंग ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वाइलिंग पे टेंशन हो जाता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, जिसके कारण ये टूट सकता है, ठीक है। तो इस टाइप को टेंशन हटाने के लिए यहाँ पे जाके बाइंड करता है कौन, यहाँ पे जाके बाइंड करता है ट्रोपोआइसोमरेज, ठीक है। चलो, तो प्रोसेस देखो कैसे होता है। ये है हमारा
ये हमारा डीएनए, ठीक है, ये हमारा डीएनए, इस पे एक्ट करता है कौन, हेलिकेज, ठीक है बात। और जब हेलिकेज एक्ट करेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। पहले बताओ कि ये हमारा मान लो ओराई साइट है, ठीक है, ओराई साइट में जाके हेलिकेज आ गया, ये मान लो हमारा हेलिकेज एंजाइम है, और ये हेलिकेज हमारा यहाँ है, ठीक है। तो ये जाके एच, ये दोनों एच बॉन्ड होता है ना, ये एच बॉन्ड इसको तोड़ता है, ठीक है, एच बॉन्ड को तोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब ये एच बॉन्ड तोड़ दिया, अब क्या हुआ, अब इस पर टेंशन डेवलप हो गया, ठीक है। अब टेंशन डेवलप हुआ, ठीक है, एक मुझे स्केलेटन बनाने दो फिर बताता हूँ। इस पे कौन एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा एसएसबी प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होगा, अब कौन एक्ट करेगा, ट्रोपो आइसोमेरेज जिसको बोलते हैं गायरेज, ठीक है। ये मैं एक जगह बता रहा हूँ, ऐसे हर जगह हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा हर जगह हो रहा होगा। देखो, इस पे कौन एक्ट करेगा, ट्रोपो आइसोमरेज, ठीक है, या फिर डीएनए गायरेज, कौन एक्ट करता है, डीएनए गायरेज, ठीक है। डीएनए गायरेज किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में। चलो, अब देखो, अब ट्रोपो, पहले तो ये बात समझ में आई, ये हमारा ओराई साइट हुआ, यहाँ पे आके हेलिकेज बाइंड किया, हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेगा और एसएसबी प्रोटीन अब आएगा। अब एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, एसएसबी प्रोटीन का काम क्या होता है, ये एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, ये एसएसबी प्रोटीन आके इस पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये फिर से एच बॉन्डिंग ना हो, वो इस पे जाके जुड़ता है, ठीक है। तो ये एसएसबी प्रोटीन है, फिर से एच बॉन्डिंग ना हो वो इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। बात बहुत सिंपल है यार, फालतू का टफ नहीं बनाओ इसे, ठीक है। यहाँ हमारा कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज, और यहाँ एंजाइम कौन एंजाइम है, ये जल्दी बताओ जल्दी, एसएसबी प्रोटीन। अब ट्रोपो आइसोमेरेज आया, ट्रोपो आइसोमेरेज में क्या किया भाई, अब देखा कि यहाँ टेंशन जो है, यहाँ टेंशन ज़्यादा होने लगी, ठीक है। तो यहाँ टेंशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ये आके इसे बाइंड करता है, ठीक है, और ये टेंशन को छुड़ाता है, और फाइनली इसमें क्या होता है, फॉर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक इधर बनता है, एक इधर बनता है, मीन्स इधर फॉर्क, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। तो unwinding of the DNA molecules at point forms a structure known as replication form. And unwinding of the molecules at the point forms a structure known as replication form. ट्रोपोआइसोमरेज का फॉर्मूला क्या है, निकिंग ऑन स्टैंड एंड टेम्पोररी कट लगा के इसको रिलीज करता है टेंसर, फिर जुड़ जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में से डीएनए गाइडेंस करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब ये बन रहा है, ठीक है। अब न्यू चेन का फॉर्मेशन कैसे करें, अब ये सारा एच बॉन्डिंग को हटा देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बना, ठीक है, ये डीएनए पहले था, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, अब इस पे आरएनए प्राइमर का अब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर का अपना जलवा आएगा, ठीक है। अब आएगा अपना मेन हीरो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसका इतने देरों से वेट हो रहा था, ठीक है। तो मेन एंजाइम इसका लिख लो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा,
ठीक है, इसका 2 रिक्वायरमेंट होता है इस स्टेप में। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज का 2 रिक्वायरमेंट होता है, वो फुलफिल होना चाहिए तभी डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले पॉलीमराइज करेगा ऑलवेज एंड ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शंस। तो पहला स्टेप ये लिख लो कि पॉलीमराइज इन इट पॉलीमराइज it polymerizes in 5 dash to 3 dash डायरेक्शन। ठीक है, यूज मतलब क्या, टेम्पलेट की तरह कौन यूज करेगा, डेट इज यूज डीएनए एज टेम्पलेट। ठीक है, मीन 3 डैश टू 5 डैश टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए। ठीक है बात, तो ये बात इसमें। और दूसरी बात ये है कि इसे आरएनए प्राइमर रिक्वायर होता है, इट रिक्वायर्स आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड नोन एज आरएनए प्राइमर, जो मैं बताया। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए प्राइमर का भी तो फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिसको प्राइमरेज भी बोल सकते हैं। आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर टेक प्लेस 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन आरएनए इज रिमूव्ड। अब जब न्यू चेन का फॉर्मेशन होगा तो आरएनए को क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे होता है, देखो जैसे कि जैसे मान लो ये डीएनए अपना, ठीक है, और ये है 3 डैश और ये है 5 डैश, लेकिन हमारा पॉलीमराइजेशन कहाँ से हुआ, 5 डैश टू 3 डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा टेम्पलेट स्टैंड। जैसे कि मान लो इस पे हो गया जी टी ए एंड सी। ओके, जी टी ए एंड सी। देन अब इस पे क्या करो, अब ये कौन सा स्टैंड होगा, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, ये टेम्पलेट स्टैंड है। और टेम्पलेट स्टैंड अब प्राइमर, अब आरएनए प्राइमर एक्ट करेगा। आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस 5 डैश टू 3 डैश होना चाहिए। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होता है, जो कि कौन सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट polymerization without RNA primer. Understand what I am telling about? Means RNA primer which provides free 3-OH group and add new nucleosides at the 3' end of the template and leads to the synthesis of what? Synthesis of the chain in 3' to 5' directions. Understand? And after the formation of new chain, RNA primer is formed. Okay, and sorry, removed. Then this is the template stand, and in this template stand what we had RNA primer. See, this is the formation of RNA primer. If this is G, then it is known as C. This is C, then a T, sorry, A, and this is T. Okay, then this is the 5' end and this is 3' end. Means this is known as RNA primer. Okay, this is known as RNA primer and synthesis is 5' to 3', 5' to 3'. Okay, now after that initiator RNA primer is formed, then पॉलीमराइजेशन। अब ये आरएनए प्राइमर बन गया, अब पॉलीमराइजेशन किससे होगा, डीएनए पॉलीमरेज से। तो जो आगे वाला जो सेगमेंट होता है ना, अब इसका पॉलीमराइजेशन क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज इस पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन एक्ट किया था, डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। तो ये इसका फंडा है आरएनए प्राइमर का कि कैसे आके जुड़ता है। ठीक है बात, नाउ अब देखो, अब मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। अब इस पे एक कॉन्सेप्ट आएगा लीडिंग और लैगिंग स्टैंड। 2 मिनट रखना, मैं इससे डायग्राम थोड़ा बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक फॉर्क तैयार हो गया था पिछले स्टेप में। ठीक है,
ये है हमारी फॉर्क, ठीक है। ये डायरेक्शन पता है ना, 3 - 2 5 - 5 - 2 3 ये ऐसे एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये बात कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बता, ये यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है, हेलिकेज, ठीक है। ये हेलिकेज बेचारा तोड़े जा रहा है सबको, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जा रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड अपना तोड़े जा रहा है, बट देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़े ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अपना ट्रोपोआइसोमेरेज भी काम कर रहा होगा, वो भी काम कर रहा है, ठीक है। अब इस पे क्या आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। ये देखो आरएनए प्राइमर आया, ठीक है। आरएनए प्राइमर आके एक्ट किया, आरएनए प्राइमर यहाँ है, ठीक है। एक आरएनए प्राइमर मतलब यहाँ भी लगा हुआ होगा ना आगे स्टेप में, देखो। अब ये आरएनए प्राइमर आया, ये आरएनए प्राइमर क्या होता है, 5 - 2 3 ठीक है। इसका सिंथेसिस क्या करेगा, ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा इसका, ठीक है। और बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड कहाँ बनाएगा, ऐसे आगे जाके, ये आगे जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ तो जुड़ा, लेकिन यहाँ भी तो जुड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ 5 है, ठीक है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सॉरी 3 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, चलेगा ना, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये आ गया आरएनए प्राइमर, और ये भी आरएनए प्राइमर। तो दोनों में आके क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है बात। अब क्या होगा, अब ये इधर आगे फॉर्मेशन करेगा, ये इधर आगे फॉर्मेशन करेगा, बट एक दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। दोनों स्टैंड पे रेप्लिकेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये देखो, ये आरएनए प्राइमर यहाँ बना रहा है, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर यहाँ बना रहा है, ये धीरे धीरे आके कंटिन्यूअसली यहाँ बनाते जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर स्टार्ट हुआ था, जैसे कि यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर आएगा, ये 5 - 2 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। फिर आगे जब ये सिंथेसिस करेगा, तो एक और दूसरा आरएनए प्राइमर यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका बॉन्ड बनाएगा, दूसरा आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा, 5 - 2 3 जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही ये बहुत सारा आरएनए प्राइमर इस पे जुड़ता जाएगा, और यहाँ पे डीएनए का जो सेकेंड स्ट्रैंड है वो बनाते जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे डीएनए स्ट्रैंड बनाते जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही आरएनए प्राइमर जुड़ा था, जो इनिशियली 5 - 2 3 था, ठीक है। तो फाइनली इसमें क्या होगा, फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे आरएनए प्राइमर यहाँ जुड़ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारा आरएनए प्राइमर जुड़ रहा होगा, ठीक है बात। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्ट स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, ये आरएनए प्राइमर से, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत है इस वाले स्टेप में, दिक्कत है 5 - 2 3 वाले स्टैंड में, ठीक है। दिक्कत है यहाँ, यहाँ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ देखो बीच में गैप बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब ये गैप बन जा रही है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये स्ट्रैंड जो है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग
कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ओके, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है बात, इसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। मींस इसमें रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस नहीं होता, बट इसमें रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस होता है। डेट्स वाई इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है लैगिंग स्ट्रैंड 5' to 3' स्ट्रैंड पे। ठीक है, अब बताओ, अब ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा फॉर्मेशन और एक ये छोटा छोटा डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट है। इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओके, क्या बोलते हैं इसे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, और इसका डायरेक्शन बता क्या होगा, ये 3' है तो यहाँ पे 5' और यहाँ पे 3'। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' और यहाँ पे 3'। ठीक है बात, तो ये इसका डायरेक्शन हुआ। ठीक है, अब बताओ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने लिख लेना, डीएनए लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड को कौन सा स्ट्रैंड करते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड करते हैं। डीएनए पॉलीमराइजेशन किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द फॉर्क होता है या अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, टुवर्ड्स द फॉर्क। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन, फर्स्ट पॉइंट लिखो, डीएनए पॉलीमराइजेशन टुवर्ड्स द फॉर्क। ठीक है, मींस डीएनए पॉलीमराइजेशन टुवर्ड्स द फॉर्क, पॉलीमराइजेशन कहाँ से होता है, 5' to 3'। ठीक है, ये 5', ये 3', तो पॉलीमराइजेशन इस तरफ हुआ, मीन्स फॉर्क की तरफ हुआ ना, इसीलिए इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द फॉर्क। इसी तरह से डिसकंटिन्यूअस में लिखो, डिसकंटिन्यूअस में लिखो टू अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म, डेट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मींस इनसाइड टू आउटसाइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसका। देखो डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट कहाँ कर रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड। इसमें ये दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब आरएनए प्राइमर रिमूव हो गया। ठीक है, 3' to 5'। अब डीएनए फ्रैगमेंट जो बनते हैं, अब ये फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और आरएनए प्राइमर का रिमूवल कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए प्राइमर का रिमूवल ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। और जो गैप बिटवीन, अब इसके बीच में जो गैप बनता है ना, अब इस गैप को कौन फॉर्म करता है, गैप फिलिंग डन बाय द डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए प्राइमर को रिमूव किया, फिर डीएनए पॉलीमरेज ही वो बनता है जो एंजाइम है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है, सॉरी फिल करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बीच का। ठीक है, और दोनों के बीच ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का कौन काम करता है, डीएनए लाइगेज। सारा फंक्शन तुम्हारे सामने है। ठीक है बात, अब बताओ, अब एक कॉन्सेप्ट है डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये लिख लेना, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन तैयार हो, डीएनए रेप्लिकेशन में हमारा ये खत्म हो चुका है। जैसे कि डीएनए का फॉर्क का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये फॉर्क बन गया, यहाँ भी डीएनए, यहाँ भी डीएनए, यहाँ डीएनए लाइगेज बन चुका है। इसी तरह से आगे भी जाता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, एक स्ट्रैंड ये बन जाएगा, एक स्ट्रैंड यहाँ ऐसे बन जाएगा, 2 स्ट्रैंड बन गया जो मैंने पहले बात की थी। ऐसे फॉर्मेशन होता है डीएनए का डीएनए से। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। पहला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, इसके बारे में कुछ जानकारी है जो एग्जाम में आती है। ये जानकारी वो है, देखो इसको तो सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय खुराना साहब डिस्कवर किए थे, हरगोविंद खुराना, सॉरी कॉर्नबर्ग। ठीक है, कॉर्नबर्ग के डिस्कवर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम। ठीक है,
इसीलिए ये काम क्या करता है एक्चुअली, ठीक है, ये काम करता है रिमूवल ऑफ प्राइमर, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड ऑल्सो फिल्स द गैप। जो मैंने इनिशियली बात की थी ना, वो डीएनए पॉलीमरेज 1 होती है, ठीक है। ये लिस्ट रिएक्टिव होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। तो इसका काम क्या है भाई, इसका काम क्या है, रिपेयर एंजाइम, ये रिपेयर एंजाइम होते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज, इसीलिए इसको रेप्लिकेज कहते हैं, रेप्लिकेज एंजाइम इसे बोलते हैं। और इससे लार्ज चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज चेन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज चेन, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात हुई। और दूसरी इसमें ये इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होती है, कौन सी एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये दो एक्टिविटी एग्जाम में पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पॉलीमरेज एक्टिविटी तो मैं बताया था 5' to 3' सब में होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, कोई भी एग्जाम हो 5' to 3' हमेशा पॉलीमराइजेशन होगा। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होता है, 5' to 3' एक्टिविटी यहाँ होगा, लेकिन 3' to 5' भी होगा, दोनों होगा, ठीक है बात। लेकिन यहाँ क्या होगा, 3' to 5' ओनली, और यहाँ पे 3' to 5' होगा ओनली, ये इसमें डिफरेंस होती है बात, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख लेना। तो डीएनए पॉलीमरेज के 3 एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, ठीक है। तो यार देखो ये डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन समाप्त हो रहा है। और एक बार फिर से वीडियो को देखना, ठीक है, अगर ना समझ में आए, क्योंकि इसमें सारा चीज़ मैंने पॉइंट बोला है, कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, तो इसको जो मैं बोला हूँ उसको राइट डाउन कर लेना, लिखा मैं नहीं हूँ, कुछ कुछ लिखा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो ये मैं सेंट्रल डोग्मा पहले डिस्कस किया हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय।